الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأراه الآیة الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. فكذب وعصى. لیکن فكذب کا معنی عطف، فعطف پھر ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا فأراه الآية الكبرى، تو ہم نے فرعون کو بڑی نشانیاں بتائیں، آیت الکبریٰ بہت بڑی نشانیاں بتائی. اچھا، میں تفسیر الحسنات پڑھ رہا تھا، سورہ طٰہٰ کی تفسیر پڑھ رہا تھا جب، تو اس میں جو مجھے چیز یاد آ گئی، اس نے بتایا تھا کہ ایک موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا دیا گیا تھا معجزہ اس وقت، عصا اژدہا، جو اژدہا بن جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے دیے گئے تھے، ایک ید بیضا، ہاتھ کو بغل میں ڈالتے تھے باہر نکالتے تھے اور وہ سفید ہو جاتا تھا. یہ کنایا تھا کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نور ہے، اس کے لیے اچھا ہے. لیکن جو اژدہا تھا، جو عصا اژدہا بن جاتا تھا، وہ ان کے لیے پیغام تھا کہ جو پیغام نہیں مانیں گے اس ہدایت کا، جو اس ہدایت کو قبول نہیں کریں گے، ان کا انجام پھر برا ہوگا. تو اژدہا جو ہے وہ بیسیکلی کنایتاً، وہ اشارتاً پیغام تھا ان کے لیے، جو نہیں مانیں گے ان کے لیے پیغام تھا کہ ان کے لیے برا ہے، اور جو نیک لوگ ہوں گے، جو ہدایت قبول کر لیں گے، ان کے لیے نور ہے، ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے روشنی ہے، ان کے لیے خوشی ہے. تو فکذب وعصا، ہم نے نشانیاں دکھائیں، فرعون کو نشانیاں دکھائیں. کذب، اس نے جھٹلایا، کذب اس نے جھٹلایا، یہ فعل ماضی ہے، پھر پلس ہوا فاعل، اس نے جھٹلایا، یہ بن گیا جملہ فعلیہ. فقط آپ دیکھیں پورا کذب، آپ دیکھیں کذب عصا ادبر یسعی، یہ پورے جملے خاشر ہے، یہ پورا ایک جملہ بن رہا ہے. آیت ایک ہے، پھر فنادا اس نے پکارا. اچھا، فکذب اس نے جھٹلایا، یعنی کہ اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے، جب اگر عطف چلے پچھلی آیت کے ساتھ، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے فرعون کو جو نشانی دکھائی نا، اس کے پاس جھٹلانے کے لیے کوئی ریزن نہیں تھی. جیسے کہ جب آپ سورہ نمل پڑھیں گے نا، تو اس میں آپ جب سورہ نمل میں یہ تفسیر پڑھیں گے سورہ نمل کی، تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اندر نے بھی گواہی دے دی تھی، فرعون نے بھی اندر نے بھی انہوں نے کہا، وہ مان گئے تھے. اور بلکہ مزید اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ تھا کہ فرعون نے حامان سے کہا تھا کہ حامان تمہارا کیا خیال ہے موسیٰ کے بارے میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام جو ہدایت لائے ہیں میں ان کو تسلیم کرنا چاہتا ہوں. تو حامان نے کہا کہ فرعون میں تو تمہیں بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، تم تو بڑے بیوقوف نکلے، تم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں آ گئے. تو معاذ اللہ. تو کذبہ کا مطلب یہاں پہ جو جھٹلانا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب چونکہ عطف بھی ہے، پچھلی آیت سے اس کا تعلق بھی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے فرعون کو نشانی بتائی. اب ہر طرح سے ہم نے اس کو اپنی نشانی دکھا دی، اور اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ ہمیں جھٹلاتا. اگر اس میں ذرا سا بھی انصاف ہوتا، اگر اس میں ذرا سا بھی ایمان ہوتا، تو پھر وہ ایمان لے آتا. فکذب، پھر ہم سورہ مومن میں پڑھیں گے کہ وہ ظالم لوگ تھے، ان کو صبح اور شام جو ہے وہ آگ پر پیش کیا جاتا ہے. فکذب اس نے جھٹلایا، کذبہ اس نے جھٹلایا، وعصا عصا جو ہے نا، یہ باب تفعیل سے ہے، کاف زال اور با مادہ، یہ باب تفعیل ہے، کذب یکذب تکذیبا. عصا جو ہے یہ مادہ ہے، یہ نافرمانی کرنا، عین صاد اور یا مادہ ہے، اور باب ضربہ سے آتا ہے، یہ بھی بن رہا ہے فعل پلس ہوا جملہ فعلیہ بن رہا ہے. کتنی خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، کتنی خوبصورتی ہے. اب یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اب دیکھیں آگے جا کے جب ہم بلاغت کی ویسے پڑھتے ہیں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کذبہ، اللہ تعالیٰ جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس نے جھٹلایا، ہمیں کوئی نقصان نہیں کیا، اس نے اپنے نقصان کیا، اس نے نافرمانی کی ہماری. عین صاد واو مادہ، یہ دیکھیں یہ تھا عصا یا تھا. تو ہم نے پڑھا کہ جب یا متحرک ہو، یہ ناقص کا قانون ہے، یا متحرک ہو اور یا متحرک سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یا کے اوپر جو زبر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یا سے جو پہلے آ رہا ہوتا ہے
हर्फ, उसके ऊपर ज़बर जो होती है वो खड़ी ज़बर में यानी अलिफ मकसूरा में बदल जाती है। तो फ़असा और उसने नाफरमानी की, उसने नाफरमानी की। सुम्मा ये भी अतफ का है, फिर क्या किया? सुम्मा तराही का माना देता है, सुम्मा फिर क्या किया? अदबरा, अदबरा ये है, इसका मादा है दाल बा और रा, मादा है, इसका मतलब होता है पीठ दिखाना। अदबरा बाबे इफाल से है, अदबरा युदबिरु इदबारन, अफअला युफइलु इफालन बाबे फा से है, उसने पीठ दिखाई यानी उसने कहा नहीं माना। अब ये देखें कितने सारे जो है वो वर्ड्स आ रहे हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स आ रहे हैं, फकज़्ज़बा वासा अदबरा, और पीठ दिखाई कैसे? यसआ, यसआ माना ये मादा है, सीन आइन और या मादा है और ये आता है बाबे फतह से, सआ सआ या यस आयु, तो चूंकि इसमें भी वही मादा वही लगा सआ या, तो देखें या से पहले अगर हरफ के ऊपर जबर है तो या की अपनी जबर खत्म हो जाती है, और जो पहले वाला हर्फ होता है, पहले वाला जो हर्फ होता है उसकी जो जबर होती है वो खड़ी जबर यानी अलिफ मकसूरा में बदल जाती है। तो देखें इसमें भी वही कानून है। तो देखें अब जब आपको ये चीजें समझ आ रही हैं तो आप जब कुरान पर एक खुली किताब आपके सामने हो जाती है। सुम्मा अदबरा उसने पीठ दिखाई, अब देखिए उसने पीठ दिखाई ये उसका फेल है, ठीक है, ठीक है, हुआ उसका फाइल है, और आप ये देखें कि अदबरा जो जुल्हाल है उसने पीठ दिखाई। अब उसने पीठ खाली नहीं दिखाई, यस आ का मतलब होता है कोशिश करना, भाग दौड़ करना। भाग दौड़ किस लिए करना? भाग दौड़ इस ये जो हशरा फनादा है ना, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। उसने ना सिर्फ पीठ दिखाई यस आ, बल्कि कोशिश करने लगा हमारे रसूल को डिश करने के लिए, हमारे रसूल को जो है वो डिमिनाइज करने के लिए। यस आ उसने कोशिशें शुरू कर दी, ये जुल हाल आ रहा है और ये उलमा कराम फरमाते हैं कि ये हाल है। अच्छा, फा का माना फिर हशरा, हशरा यहशुरु, हा शीन रा मादा है, ये बाब नसरा से आता है, नासरा यंसुरु, नासरन हशरा यहशुरु, हशरा यहशुरु का मतलब है जमा करना। फिरौन ने क्या किया? सबको जमा किया, सबको जमा किया, ठीक है, सबको जमा किया। इसकी तफसीर हम सूरह ताहा में हम डिटेल से पढ़ेंगे, सूरह अराफ में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फहशरा फनादा, अब देखिए पूरा एक जुमला बन रहा है, ये फेले माजी है, उसने किया प्लस हुआ फाइल है, और फाइल ये पूरा जुमला फीलिया बन रहा है। देखें जुमला इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जुमला फीलिया से, और जुमला इसमिया में परमानेंट माने पाए जाते हैं, लेकिन जुमला फीलिया जो होता है वो फॉर द टाइम बिंग होता है। इसका मतलब उलमा कराम फरमाते हैं, जो इशारतन जो बात है वो ये है कि उसने अगर किया तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हमें कुछ भी नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फनादा, ये फनादा पर हम बहस कर चुके हैं, ये वर्ड था नून दाल और या मादा था। फनादा ये बाबे मुफाअला से आया है, बाबे मुफाअला। बाब मुफाले का ये होता है कि जाहद युजाहिदु, कातला युकातिलु, एक काम करता है, एक फाइल होता है, दूसरा मफूल होता है। कातला युकातिलु, एक कत्ल करता है, दूसरा कत्ल होता है। जाहद युजाहिदु, एक जहाद करता है, दूसरे पर जहाद होता है, कोशिश की जाती है। तो एक नादाया युनादियु, तो एक पुकारता है और जिसको पुकारा जाता है। तो ये फक्कर ज़बा वासा, अब मैं आपको उसकी सिलिस कर देता हूँ। फक्कर ज़बा यानी कि हमने उसको अपनी तमाम निशानियां दिखाई, लेकिन उसने क्या किया? फिरौन ने फकत ज़बा, उसने जुटलाया, उसने नाफरमानी की, उसने फिर पीठ दिखाई, और पीठ भी कैसे दिखाई? अब देखिए इसका ताल्लुक इससे है, अब देखिए इसका ताल्लुक इससे है। सुम्मा अदबरा, और उसने पीठ दिखाई, और पीठ भी कैसे दिखाई कि यस आ, और उसने कोशिश की, किसको कोशिश की? मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ। जैसे कि सूरह मोमिन में आप पढ़ेंगे कि जब फिरौन जो है वो अपनी जब वो कैबिनेट को बुलवाता है, ठीक है, और उस कैबिनेट में जो है उसके मिनिस्टर्स होते हैं और जो उसके एडवाइजर्स होते हैं, चीफ एडवाइजर्स होते हैं, उनसे कहता है कि मुझे तुम इजाजत दो, मुझे परमिट दो, मैं मूसा को कत्ल कर दूं, मूसा अलैहिस्सलाम को मैं शहीद कर दूं, माजला सुमा माजला। तो वो सूरह मोमिन में हम पढ़ेंगे। तो फहाशरा फनादा, उसने क्या किया? उसने जमा किया। फनादा, उसने फनादा पुकारा, ये उसने बुरी नीयत से पुकारा। जाहिर सी बात है उसने तमाम लोगों को जमा किया कि जादू, मूसा तुम भी अपना जादू दिखाओ और मैं भी तमाम जादूगर। ये हशरा का मतलब है लोगों को भी जमा किया। अब देखिए ये कुरान पाक की बलागत है। अब ये मफऊल, अब देखिए इसको कहते हैं अल अमूम बिश्शिमाल, के जमा किया, लोगों को भी जमा किया, ठीक है, और जादूगरों को भी बुलाया कि जो मुल्क के नामवर जादूगर थे, जो जादूगरी का फन जानते थे, वो मूसा अलैहिस्सलाम को डिमोनाइज करने के लिए उनको बुलाया जाए। तो जब आप सूरह राफ पढ़ेंगे तो उसमें ये भी है कि जादूगरों ने कहा था कि फिरौन अगर हम जीत गए, अगर हमारा जादू कामयाब हो गया,
तुम इनाम में क्या दोगे, हमारे लिए कोई इनाम भी है? तो फिर उन्होंने कहा था कि तुम्हें मैं अपना कुर्बे खास दूंगा, तुम्हें मैं अपने ज्यादा करीब करूंगा। तो ये हो गया हशरा फनादा। अब देखिए ये कुरान पाक की बलागत, अल्लाह ताला ने हशरा यहाँ पे मफऊल नहीं बताया। देखिए यहाँ पे फेल और फाइल से जुमला फेलिया बना दिया, और यहाँ पे मफऊल नहीं बताया कि किसको जमा किया, और ये अल अमूमी शिमाल, यानी कि ये आम कर दिया, लोगों को भी और जादूगरों को भी। अतफ का फिर क्या किया, फकाला उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा क्या, अभी देखिए सारा बन रहा है, मफूला बन रहा है। उसने कहा अना मैं रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा पालने वाला हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ। आला, आला अब ये उसकी सिफ्त है, ये सिफ्त है रब्बुकुम, यानी कि मैं तुम्हारा ऐसा रब हूँ कि जो तुम्हारा बड़ा बुजुर्ग है, बड़ा बुलंदो मर्तबे वाला है, बड़ा बरतर है। ये उसने बात की, ठीक है। अब जब उसने ये बात की ना कि मैं तुम्हारा रब हूं, यानी कि जो फिरौन को पैगाम दिया जा रहा था कि तुम एक अल्लाह ताला पर ईमान लाओ, एक अल्लाह ताला की इबादत करो, एक अल्लाह ताला को रब मानो, उसने ये कहा ना रब्बो को मुलाला। अब जो ये फा है, ये फा सबबिया है, फा सबबिया है, ये फा तफका नहीं है, ये फा सबबिया है। तो इसका मतलब यह है कि इस सबब से, उसके इस कौल की वजह से, उसने जो ये कहा उसकी इस बात की वजह से, अखजा 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 याखुजु फअखज़हु, तो पकड़ा, पकड़ा। अखजा का मतलब होता है पकड़ना। हु, अब यहाँ पे देखें मफऊल आ रहा है, किसको पकड़ा, फिरौन को पकड़ा, किसने, अल्लाह ने। तो फअखज़हुल्लाहु, तो उसको पकड़ा। अब ये देखें तरकीब देखें, अखजा क्या है, फेल है, ठीक है। हु क्या है, ये मफऊल है, ठीक है। अल्लाह क्या है, ये फाइल है, ठीक है। जुमला यहाँ पे फेल। अब ये जो है नकाल अल आखिरती वल ऊला, ये मफऊल मुतलक है, ये सारा ये मुजाफ बन गया, आखिरती ये नकाल। नकाल कहते हैं ऐसी सजा देना जो कि लोगों के लिए इबरत बने, जो लोगों के लिए इबरत बने, ऐसी सख्त सजा देना। नक्काला है ना, नक्काला उसका मतलब होता है लोहे की बेड़ियां पहनाना, ठीक है। तो नकाल कहते हैं सख्त सजा देना, सख्त सजा देना, ऐसी सख्त सजा देना जिसमें दूसरों के लिए, अभी आगे मजीद आगे आएगा। ये मुजाफ है। अच्छा, अल आखिरत वल ऊला, ये मातूफुन अलैह है, ये अतफ है वाव और ऊला आखिरती, यानी कि आखिरत में भी, अल आखिरती वल ऊला, ऊला जो है ना अव्वल, अव्वल यानी कि इस जिंदगी की, और ये मोनस है, देखे ना, ऊला है ना फ़ुअला के वजन पे है, ये देखिए फ़ुअला के वजन पे है, ऊला फ़ुअला के वजन पे है, ठीक है। आखिरा तो पहले यानी कि बाद में आने वाली, पीछे पीछे, आखिरा का मतलब होता है पीछे वाली, दूसरी, दूसरी यानी ये दूसरी जिंदगी और ये पहली जिंदगी, ये पहली जिंदगी और ये दूसरी यानी आखिरत की जिंदगी, ठीक है। तो हमने उसको फिर पकड़ा, और कैसा पकड़ा। अब ये जो नकाल है ना, नकाला बमाना अखजा, या अखजा पकड़ा, बमाना नकाल, तो ये एक दूसरे के बदल के तौर पर भी आए हैं। अखज़हुल्लाहु, तो अल्लाह ताला ने उसको पकड़ा, कैसा पकड़ा, नकाल अल आखिरती वल ऊला, उसको सख्त सजा में पकड़ा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और देखें सूरह मोमिन में आप पढ़ेंगे कि फिरौन को सुबह और शाम आग पे पेश किया जाता है। अब अखज़हुल्लाहु नकाल अल आखिरती वल ऊला, ये सारा बना मुरकब अतफी बना, मुरकब अतफी बना, और ये मुरकब अतफी इसका बना मुज़ाफ इलैह, लेकिन ये बन रहा है मफऊल मुतलक बन रहा है। मफूल मुतलक क्या होता है, मफूल मुतलक होता है जो फेल होता है ना उसकी जिंदगी को शो करता है, यानी अल्लाह ताला ने पकड़ा, तो कैसा पकड़ा, नकाल अल आखिरती, बड़ा सख्त पकड़ा, बहुत सख्त पकड़ा उसको, फकाल अल आखिरत वल ऊला। तो समझने के लिए ना पहले हम जरा सिंपल ये समझते हैं, पहले देखें सिंपल, देखें ये सिंपल, इस आयत को समझने के लिए ये सिंपल अरबी का स्ट्रक्चर है। अल्लाह ताला ने किस तरीके से इस आयत में अपना पैगाम दिया, इसको समझिए। इबरतुन, इबरत है फी ज़ालिका, इसमें। अब ये देखिए ये क्या है, ये है मुब्तदा, ये है मुब्तदा, फी ज़ालिका ये है जार, और ये है मजरूर, ठीक है। जार मजरूर मिलके बनते हैं मुरक्कब जारी, और मुरक्कब जारी किसी जुमले का वो कोई अहम जो है वो परमानेंट स्टेटस नहीं होते, ये कुछ बनाते हैं मुरक्कब जारी। अब मुरक्कब जारी है तो खबर मौजूद नहीं है, तो उसको हम कहेंगे कायम मुकाम खबर, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने फी ज़ालिका पहले आ गया। अब जब फी ज़ालिका पहले आता है
तो अरबी जुबान में क्या फर्क पड़ता है, अरबी जुबान में स्ट्रेस स्ट्रेस पैदा करता है। मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, अगर लिल्लाह को हम पहले कर देंगे, अब ये देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न है, ये देखिए अल्हम्दु लिल्लाही। अब देखिए अल्हम्दु क्या है, ये मुब्तदा है, अब इसमें खबर नहीं है, लिल्लाही ना लाम ये ज़ेरली है, ये जार है, ठीक है, और ये जो है ये मजरूर है, ठीक है, ये जार मजरूर मिलके मुरक्कब जारी बने, मुरक्कब जारी मुब्तदा है तो ये कायम मुकाम खबर बने, कायम मुकाम खबर बने। लेकिन अगर इस लिल्लाह को हम अलहम्द से पहले ले आएंगे तो क्या तर्जुमा बनेगा, ये इसको कहते हैं तकदीम व ताखीर। अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए, जब ये पहले आएगा, जब ये मुब्तदा से पहले आ जाएगा, जब इसको हम मुकद्दम करेंगे तो तर्जुमा करेगा कि सिर्फ अल्लाह के लिए ही है हम्द, ठीक है। इसमें देखें इबरतुन फी ज़ालिका, इसमें इबरत है। अच्छा, इबरत का माना पता क्या होता है, इबरत का माना होता है कि सोच विचार कर उसमें से सबक हासिल करना, उस पर गौर फिक्र करके सबक हासिल करना। इबरत का माना होता है गौर फिक्र करके सबक नसीहत हासिल करना, ठीक है। इबरतुन फी ज़ालिका, गौर फिक्र करने वालों के लिए, अगर कोई गौर फिक्र करे इस वाक़े में तो इसमें वो गौर फिक्र करे, उसमें उसके लिए निशानी है। फी ज़ालिका, इसमें निशानी है। अब देखिए इसमें उसमें टून चेंज हो जाती है, उसमें एक स्ट्रेस है, यानी कि देखिए उर्दू में आप जिस जिस तरह की भी ताकीद, जिस तरह का भी स्ट्रेस पैदा कर सकते हैं आप करें, अरबी में ये स्ट्रेस, अरबी में ये तरीका होगा कि फी ज़ालिका इबरतुन, फी ज़ालिका इबरतुन, इसमें है सबक आमेज नसीहत, इसमें है गौर व फिक्र करने वालों के लिए नसीहत। अब जब ये हो गया फीजा इन्ना फी ज़ालिका, अब देखिए मजीद ताकीद पैदा की, एक तो ताकीद का दर्जा ये हुआ, देखिए पहला डिग्री ये हुई, पहली डिग्री अल्लाह ताला ने ये किया, फिर दूसरा डिग्री क्या किया कि उसमें इन्ना ऐड कर दिया, इन्ना 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 ऐड कर दिया, ठीक है। इन्ना फी ज़ालिका इबरा, इन्ना फी ज़ालिका, अब इबरतन, अब देखें इन्ना लगाना तो ये हालत नसब में चला गया। अब देखिए इन्ना फी ज़ालिका इबरतन, अब यहाँ पे भी बात खत्म नहीं हुई, अब 3 दर्जे डिग्री पैदा कर दी, इन्ना पहली, फी ज़ालिका दूसरी, और ला इबरतन, इन्ना फी ज़ालिका ला इबरतन, फी ज़ालिका, इन्ना और लाम, इसको कहते हैं लाम मुज़ालिका, भी लाम मुज़ालिका इसका नाम है, और ये लाम तौकीद है। बेशक इसमें निशानी लाइबरतन, निशान, अब देखिए जिस तरह भी आप समझ सकते हैं, उर्दू में जिस तरह का भी इसका लहजा होगा, जिस तरह का भी लहजा होगा वो आप करेंगे। इन्ना फी ज़ालिका लाइबरतन, इसमें निशानी है समझने वालों के लिए। देखिए ये हर्फ है, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, इन्ना फी ज़ालिका लाइबरतन लिमन यख्शा, लिमन यख्शा। अब ये समझ आ गया आपको कि इस हिस्से में क्या है, 3 दर्जे, 3 डिग्री स्ट्रेस है, ठीक है। भाई हमारी लास्ट आइटम, मैं इसकी थोड़ी सी तरकीब कर दो। ये इन्ना क्या है, हर मुशब्बह बिल फेल, ठीक है। फी ये है जार, ज़ालिका जो है ये मजरूर है, जार मजरूर मिलके बने मुरक्कब जारी बने। देखें इसमें इन्ना, देखें अल्लाहु गफूरुन, ठीक है। जब इन्ना लगा, तो चेंज हो गया, इन्नल्लाहा गफूरुन, तो ये क्या है, इस्मु इन्ना, और ये क्या है, खबरु इन्ना। तो इसमें क्या है, हालत नसब में है, इसम हालत नसब में इसम होता है इन्ना का, तो ये हालत नसब में है, तो इसको हम कहेंगे इस्मु इन्ना, ठीक है, और इसको हम कहेंगे खबरु इन्ना, खबरु इन्ना। ये कायम मुकाम खबर है, कायम मुकाम खबर भी कहेंगे क्योंकि ऐसा सच तो नहीं है
خبر تو موجود نہیں ہے، قائم مقام خبر، تو یہ اسم انا اور یہ خبر انا، یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب یہ لمن لی جو ہے نا یہ ہے جار، اور من یخشا جو یہ موصول ہے، موصول یخشا، یخشا یہ فعل ہے جو ڈر جائے، جو ڈر گیا، یہ فعل پلس ہوا جو ہے یہ فاعل ہے، اور یہ پورا دیکھیں پورا یہ جملہ فعلیہ بنا، جملہ فعلیہ بنا، موصول ہے تو یہ ہے، یہ صلہ بنا، اس کا موصولہ صلہ بن مل کے کیا بنے، پیچھے جار کر ہے تو یہ بنا مجرور، تو جار مجرور مل کے مرکب بنے، مرکب جاری بنے، مرکب جاری مل کے کچھ بنتے ہیں، مرکب جاری کیا دیتے ہیں، متعلق خبر، یہ میں ادھر لکھ رہا ہوں، یہ متعلق خبر، یہاں قائم مقام خبر، فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، اس تمام واقعے میں بے شک، اس تمام واقعے میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، لمن یخشی، لمن یخشی، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ کیا تو فقل حل لک الی ان تزکی واہدیک الی ربک فتخشی، میں تجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت دوں تو ڈر جائے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کتنے خوبصورتی سے اس حصے کو کلوز کیا، لمن یخشی، تو جو ڈرتا ہے، تو جو ڈرتا ہے اس کے لیے نشانی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہوتی ہے جب آپ کو تو آپ ڈر جاتے ہو، لمن یخشی، اور جو ڈرتا ہے جس میں ڈر کا مادہ موجود ہے اسی کے لیے عبرت ہے۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔